So let us now go for the atomic scattering factor expression. For that, as we know that the phase difference was phi is equals to 2 pi over lambda r dot n. So I will write here that is phi is equals to 2 pi over lambda r dot n. Now, while proceeding in this way, we can write 2 pi over lambda, and we will replace this dot product by cos theta, then r n cos phi, not theta but phi, because of phi is here in this diagram, that is with the normal and this volume element. Okay, so ये वाला phi हमने लेना है यहाँ पर n और dv के बीच वाला phi angle. So rn cos phi. Now n का वैल्यूज भी हम जानते हैं, that is n is 2 sin theta. So because n is 2 sin theta, so by using this value phi is equals to 2 pi over lambda r, n is 2 sin theta and cos phi. So therefore phi is 2 pi over lambda r sin theta and cos phi. So this is your again phase difference by using the value of n, and further we can write this phase difference that phi is equals to mu r cos phi. Why? Because we are using here that is mu is equals to 4 pi over lambda sin theta. Okay, इस तरह से यूज कर लिया हमने इसको. Now this is equation 1, let us say. Equation 2, let us say, and this is 1. So now, because we want to find the atomic scattering factor from the electrons and from the atoms, so let us consider that amplitude scattering amplitude from the point electron. Okay, यहाँ पे इस चीज पे फोकस करिएगा, हम कहाँ से एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम कहाँ से ले रहे हैं, दैट इज फ्रॉम पॉइंट इलेक्ट्रॉन. सो ये कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. के एक्स आयोटा के एक्स minus omega t. So k is again bay vector 2 pi over lambda in terms of lambda. हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इसको 2 pi over lambda कर देंगे यहाँ पर. Now atomic scattering factor from point electron से बात करें, अगेन ये आपका सेंटर है एटम का और स्कैटरिंग इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं हम. तो स्कैटरिंग फ्रॉम पॉइंट इलेक्ट्रॉन, एक किसी पॉइंट इलेक्ट्रॉन से, और इस तरह से हमने यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट भी दे रखा है. सो नाउ वी विल कंसीडर दैट द स्कैटरिंग फ्रॉम पॉइंट इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि पॉइंट इलेक्ट्रॉन से, पॉइंट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से मान लो पॉइंट इलेक्ट्रॉन यहाँ है अगर, तो यहाँ से स्कैटरिंग वो कितना होगा, दैट इज ए ई एक्सपोनेंशियल के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये जनरल फॉर्मूला होगा आपका पॉइंट इलेक्ट्रॉन से. ओके, नाउ सेकंड, ये आपका फर्स्ट आ गया. नाउ सेकंड, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हमने या फिर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमने कहाँ से देखना है, फ्रॉम दिस वॉल्यूम एलिमेंट डीवी. ओके, एक तो हमने पॉइंट से देखा, सेकंड वाज फ्रॉम डीवी. सो स्कैटरिंग फैक्टर या फिर स्कैटरिंग नॉट फैक्टर, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड.
scattering amplitude from volume element dV. That will be is equals to A exponential iota kx minus omega t plus phi. और ये phi कौन सा है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में कैलकुलेट किया है, दैट इज दिस phi. तो स्कैटरिंग फेज डिफरेंस ये क्योंकि हमने किसके लिए कैलकुलेट किया था, दैट फॉर दिस वॉल्यूम एलिमेंट dV. तो scattering, because we are using now scattering for this element dV के लिए हम scattering का amplitude find out करना चाह रहे हैं. तो हमारा जो scattering amplitude होगा वहां पे क्या ऐड हो जाएगा, phi. और ये phi जो है ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है. ये phi आपका 2 pi over lambda in terms of wavelength r dot n. ये किसके लिए आता है, दैट इज फॉर वॉल्यूम एलिमेंट dV. नाउ अगेन वॉल्यूम एलिमेंट है बिकॉज सो वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज डेंसिटी आपका dV रो रहता था, रो dV वॉल्यूम एलिमेंट dV के लिए. नाउ द रेशियो ऑफ दीज टू, नाउ ratio of this one scattering from point electron and scattering from volume element. तो रेशियो इसका आ गया आपका, यू कैन से दिस dB फॉर वॉल्यूम एलिमेंट V के लिए. तो ratios of scattering amplitude from point electron and from volume element, that will be dF. ये वॉल्यूम एलिमेंट के लिए है. So A exponential, this is for point electrons, that is now ratio of scattering amplitude is equals to scattering from volume element divided by from single electron. Scattering amplitude from single electron. So this is A exponential iota kx minus omega t plus phi into rho r dV over exponential iota kx minus omega t, and we can say this is dF, small f. So scattering amplitude ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आ गया. अगेन वॉल्यूम एलिमेंट आपका कौन सा है, दिस वन वॉल्यूम एलिमेंट और एक सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन से कितना स्कैटरिंग हो रहा है, ये रेशियो होगा इसका. फर्दर इसको हम सॉल्व करें अगर तो इसको सेपरेट कर लेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई इंटू रो आर dV which is equals to exponential iota, and this phi is nothing but, because phi is equals to 4 pi, not 4 pi, that is mu r cos phi. previous expression use कर रहे हैं हम यहाँ पर, that is equation number 2.
So iota mu r cos phi rho r into dv, and the rest of the things, that is a exponential iota kx minus omega t, that will be cancelled out here, and the rest is a exponential iota phi, ये यहाँ पे रह जाएगी हमारे पास term only single, and rest will be cancelled out. So finally this atomic factor, that is dF, is equals to e iota mu r cos phi rho r into dv. So this is a small वॉल्यूम एलिमेंट या फिर एक स्कैटरिंग जो हमने स्मॉल जैसे रीजन के लिए कंसीडर करा था. तो टोटल स्कैटरिंग फैक्टर जो है वो कैसे होगा, कैसे निकलेगा, दैट इज वाई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन 3. ओके, वाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3. सो टोटल एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर दैट विल बी रो आर एक्सपोनेंशियल आयोटा mu r cos phi into dv, that is equation 4. So अब हमारे पास इक्वेशन 4 जो है ये आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है. किसी भी स्कैटरिंग फैक्टर को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर 4 इज कंप्लीट नाउ. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज dv, ये अभी अधूरा है. ओके, जिसको क्या है हमें अभी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वॉल्यूम की dv की, वो हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 4 में यूज कर लेना है. और आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट दैट दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन फॉर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट dv. तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है आपका, दिस वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट का कुछ एरिया भी होगा और थिकनेस भी होगी. और एरिया और थिकनेस को हम इन टर्म्स ऑफ जो है लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, विड्थ और थिकनेस की हेल्प से. बिकॉज एरिया जो आपका सर्कमफ्रेंस और विड्थ में ले लिया जाए तो दैट विल बी 2 pi circumference r sin phi is width and thickness will be r d theta dr. okay, so ये जो वैल्यूज निकली है ये आपकी सर्कमफ्रेंस होगी, क्योंकि आपका एरिया एलिमेंट जो है ये इस तरह से है, इसका कुछ सर्कमफ्रेंस है, इसका थिकनेस है. ओके, कितना थिक है ये, इसका थिकनेस होगा कुछ, और साथ में इसका जो है विड्थ भी होगा. ओके, कितना विड्थ है इसका. तो इस तरह से वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास ये निकल के आ रहा है. और इस वॉल्यूम एलिमेंट को मैं इक्वेशन 5 दे दूं नाम, और यूज इक्वेशन 5 इन 4 we will get, that will be f is equals to 0 to infinity and 0 to pi. और ये फर्स्ट वैल्यू r जो है ये रहेगा आपका 0 to infinity, क्योंकि आपका r जो है 0 to infinity वेरी करता है, और phi that will vary from 0 to phi. Now rho r exponential iota mu r cos phi into 2 pi r square sin phi d phi and dr. So remember यहाँ पर हमने थीटा यूज नहीं करा है, जस्ट यहाँ पर आपके पास क्या है r and phi, नॉट थीटा. ठीक है, अगर थीटा होता तो थीटा जो वेरिएशन होता उसका वो कहाँ से होता ना 0 to 2 pi वेरिएशन होना था इसका. सो
Let us solve now that the value of r's की वो जो values हैं that is 0 to pi. Let us solve for angles. phi के लिए use कर लेते हैं, phi के लिए that is 2 iota mu r cos phi. जो भी आपकी phi की values हैं वो आपने यहाँ लिखनी है और इसकी जो value आएगी that is 2 sin mu r over mu r. ओके, यहाँ पर आगे देखें आप तो ये वैल्यू आपका cos phi एंगल में पड़ा है और ये वैल्यू, और इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा आपके ये 2 sin mu r की फॉर्म में. नेक्स्ट इज if I calculate this further, then it will be f is equals to 0 to infinity, that is r, and rest is 4 pi r square rho r sin mu r over mu r. Okay, so if we use the limits, that is theta approaches to 0, then mu also approaches to 0, then this value of sin mu r over mu r, that will be approached to 1. Okay, theta 0 means because आपका mu जो है that is 4 pi lambda into sin theta. Okay, that is mu and theta इस तरह से इस इक्वेशन में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं. तो अगर आप इस वैल्यू में यहाँ पर थीटा वैल्यू 0 करते हैं तो म्यू क्या है आपका ये भी 0 हो जाएगा, और अगर म्यू 0 होता है देन ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन फॉर फाई के लिए ये जो इक्वेशन था, अगर यहाँ म्यू 0 होता है तो ये इक्वेशन जो है किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इन 1. सो the equation 4 become, क्योंकि हमने इक्वेशन 4 में जो है ये वैल्यू जो है दैट इज अप्रोचेस टू 1, ये हमने यूज करना है. सो देयरफॉर इक्वेशन 4 implies that is f is equals to 0 to infinity 4 pi r square rho r into dr. So this is your atomic scattering factor expression. और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का एक्सप्रेशन जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर रो आर, जितना आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उतनी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है, और यहाँ पर थिकनेस डी आर है और रेडियस आर है और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. दस अगर हम कहें कि the integration equals to total charge in the atom, और because ये आपका जो क्या है ये क्या है that is total charge in the atom. Then in terms of charge की बात करें हम, तो अगर मैं इसको Z लिख लूँ, total charge that is Z, then F is nothing but Z for theta is equals to 0. So again atomic scattering factor expression is F is equals to Z, और Z क्या है, total charge in the atom.
क्योंकि अगर मैं किसी एटम की बात करूं, सोडियम एटम है, एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो जितना सोडियम एटम पे चार्ज ओके, उतना ही क्या है यहाँ पे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा. दैट मीन्स एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ दिस. जितना वैल्यू आपका चार्ज का है, एटॉमिक नंबर का है, उतना ही आपका स्कैटरिंग फैक्टर होगा. And also this scattering factor f is always less than z if all values, for all values, not if but all values, for all values of theta. So this is all about expression of atomic scattering factor.